Namaste and welcome students. I hope you all are fine and safe at home and enjoying your online classes. Dear student, in my previous lecture, I have discussed chapter 6 neighborhood. In this, I have discussed about the importance of post office. I have also discussed about the importance of school. School is very important because it not only teaches us but it also trains us in the art of living, loving, sharing and caring among group. In school children, a student of different family, religion, language come and study together. They interact with each other with harmony. They cooperate and coordinate and also help each other. This is the beauty of the school. This is the purpose of the school. This is the importance of the school. I have also discussed about the importance of bank. Bank provides a lot of facilities to their customers. With the help of internet, banking facilities has become so easy, convenient and comfortable nowadays. Now we can get many banking facilities without going to home, without going to bank. We can do digital transaction without losing our precious time. प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर 6 का जो डिस्कशन किया था इससे पहले के हमारे सेशन में, उसमें मैंने पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया था, मैंने स्कूल के बारे में बताया था कि स्कूल किस तरह से हमें सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता है बल्कि लोगों के बीच हम कैसे रहें, कैसे बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के बीच हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ये आर्ट भी सिखाता है। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, लोगों के साथ कैसे मिलना जुलना। क्योंकि जो स्कूल होता है उसमें सभी तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग फैमिली के आते हैं, अलग अलग धर्म के, जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, रीति रिवाज को फॉलो करने वाले, और सभी लोग मिलजुल कर स्कूल में एक साथ सद्भाव के साथ मिलते हैं और एक दूसरे की सारी चीजों को शेयर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं कभी भी जब जरूरत आती है। तो इससे स्कूल की जो मुख्य गरिमा बनी रहती है और स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को ट्रेन करना, जीवन जीने की कला सिखाना और उन्हें शिक्षा देना, उन्हें सही उनके गुणों का विकास करना, इस कार्य में स्कूल अपने आप को सफल बनाता है। चिल्ड्रेन, हमने बैंक की भी बात की। बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज देती है अपने कस्टमर्स को। आजकल तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, आप जानते हो, बहुत ही आसान हो गया बैंकिंग प्रोसेस, बैंकिंग फंक्शन। आज हम बिना बैंक गए ही डिजिटल ट्रांजेक्शन के द्वारा, इंटरनेट की हेल्प से, कंप्यूटर से और अपने स्मार्टफोन के द्वारा हम बैंकिंग फैसिलिटीज को घर बैठे ही अवेल करते हैं। डियर चिल्ड्रन, इन माय टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल. Today I am going to discuss about hospital. Children, whenever people don't feel good, they go to the doctor. You know that there are so many different hospitals for different patients, for different kind of patients. For the heart people, there is a heart hospital. For the ladies problem, there is a hospital for ladies and gynecologists treat them. Children, first of all, I would like to show you the picture of hospital. Here you can see this is a picture of hospital. Before I start the topic hospital, I would like to tell you about the features of the hospital. You can see here, this is the hospital and this is the plus symbol, red plus symbol in red. This is the symbol of what? This is the symbol of hospital. Plus in red color is the symbol of hospital. You can find this symbol on the hospital and you can find on the ambulance and many other facilities which are related to the health issues. You can see here that, children, here the receptionist is here in the hospital. You can see the picture of a doctor. This is a picture of a doctor, a senior doctor, you can see. And this doctor is carrying a stethoscope in his hand. This is the stethoscope. What is the name of this instrument? The name of this instrument is stethoscope, जिसे हम आला कहते हैं। बेटा, हम हॉस्पिटल का फोटो दिखा रहे हैं आपको, और इस हॉस्पिटल के फोटो में जो प्लस का सिंबल होता है, ये हॉस्पिटल से जुड़ा सिंबल होता है, हेल्थ से जुड़ा सिंबल होता है, प्लस का सिंबल। हमने डॉक्टर का जो फोटो दिखाया है आपको, इसमें डॉक्टर साहब ने हाथ में आला लिया हुआ है। इसको आला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप, जिससे वो हमारे
बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसको वो फील करते हैं, अपने कानों में लगाते हैं एक पार्ट को और बाकी दूसरे पार्ट को हमारे हार्ट पे और हमारे बैक पे वो इसका प्रयोग करके हमारे बारे में पता करते हैं। तो ये आला जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ नर्स हु इज फॉलोइंग द डॉक्टर। हियर देयर इज ए नर्स and this boy is sitting on what? Wheelchair. You can see this here is known as the wheelchair, क्योंकि इसमें चक्का लगा होता है। और किसी को भी पेशेंट को ले आने के लिए हम कौन सी चेयर का प्रयोग करते हैं? चक्के वाली कुर्सी का। इसको हम व्हील चेयर जिसमें व्हील लगी है उसको हम व्हील चेयर कहते हैं। तो दिस नर्स इज हेल्पिंग दिस बॉय टू गो टू द हॉस्पिटल, to get inside the hospital, and you can see that boy is sitting on the wheelchair. You can see here that the patient is what? Taking rest on the bed. This is a bed and water is being transfusing, पानी चढ़ाया जा रहा है। You can see here doctor is what? Doctor is just treating this patient and you can see that nurse is standing here. You can see that children in the hospital there are different room for different purposes for the checkup of different patient. This is the picture of X-ray. This is the photo of X-ray. This is the X-ray room. You know, यह X-ray room है जहाँ पे मरीज की फोटो ली जाती है अलग अलग पार्ट के, उसके द्वारा डॉक्टर को पता चलता है कि शरीर के अंदर किस जगह में क्या परेशानी है। So it helps to take photo of the particular part of the body which helps the doctor to diagnose the प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, जिससे रोगी की परेशानियों को जानने में डॉक्टर को मदद मिलती है। नेक्स्ट इज द ईसीजी। ईसीजी, दिस इज द ईसीजी रूम, जहां हार्ट से जुड़े लोगों की जो बीमारी होती है तो लोगों के हार्ट के बारे में जानकारी करने का एक टेस्ट होता है ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। दिस इज द ईसीजी रूम एंड यू कैन सी दैट दिस इज द लैब। दिस इज द लैब। यू नो, लैब में अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, खून का टेस्ट, पेशाब का टेस्ट, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं जिस टेस्ट से हमें बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है उस टेस्ट में, और डॉक्टर हमारी उन बीमारियों का फिर इस टेस्ट के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई हैव शोन यू चिल्ड्रेन द पिक्चर ऑफ व्हाट? द पिक्चर ऑफ हॉस्पिटल। नाउ चिल्ड्रेन यू नो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हॉस्पिटल। ए हॉस्पिटल इज ए मस्ट इन एवरी नेबरहुड। हर नेबरहुड में हॉस्पिटल क्या है? जरूरी होता है। हॉस्पिटल इज ए मस्ट इन एवरी नेबरहुड। हमारे आसपास में हॉस्पिटल का होना बहुत ही जरूरी है। हमारा लोकेशन अच्छा तभी माना जाता है जब उस लोकेशन में स्कूल हो, बैंक हो और हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, मार्केट हो। ये सारी सुविधाएं जिस लोकेशन में होती है वो एक अच्छा लोकेशन माना जाता है। तो हॉस्पिटल इज ए मस्ट इन एवरी नेबरहुड। हर नेबरहुड में, हर लोकेलिटी में एक हॉस्पिटल का होना जरूरी होता है। Why do we go to the hospital? The main question is that why we go to the hospital? We go to the hospital when we are sick. हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं। नॉर्मल डेज में हम इसको हॉस्पिटल जाते हैं? नहीं, नॉर्मल डेज में हम नहीं जाते। हम जब बीमार होते हैं, when we don't feel good, when we are in trouble physically or mentally, then we go to the hospital. जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तभी हम हॉस्पिटल जाते हैं। Now the third point is there are doctors and nurses in the hospital. Who lives in the hospital? There are doctors and nurses in the hospital. And what is the purpose of doctors and nurses in the hospital? The purpose of the doctors and nurses in the hospital is to treat the patient, to help the patient to get rid of the disease. जिस बीमारी के लिए जो पेशेंट गए हैं हॉस्पिटल में उनको ठीक करना, उनकी तबीयत को ठीक करना। दिस इज द पर्पस ऑफ द डॉक्टर एंड नर्स। इसलिए हम डॉक्टर को क्या कहते हैं? डॉक्टर को हम भगवान भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी को बचाता है। हम गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज हमारे डॉक्टर करते हैं और हमें बिल्कुल ठीक कर देते हैं। सो चिल्ड्रेन, डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल दे ट्रीट अस एंड वी गेट क्योर, और इससे हम ठीक होते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज चिल्ड्रेन, द डॉक्टर्स एग्जामिन द पेशेंट्स एंड गिव मेडिसिन्स। When we go to the hospital, what do the doctor do? The doctor examine the patient, and after examining the patient, they give medicine to the
पेशेंट। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करते हैं, जब पेशेंट जाते हैं, कोई भी बीमार व्यक्ति जाता है तो उसको एग्जामिन करते हैं। उसको एग्जामिन करने के बाद चिल्ड्रेन उसे मेडिसिन देते हैं। द नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्स? द फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू लुक आफ्टर द patient. Nowadays, children, during corona crisis, hospital is playing a very important role. Doctors, nurses and paramedical staffs are working day and night to take care of the patient. बेटा अभी जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, जो कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, उसमें हम सभी अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं। आप घर में पढ़ रहे हैं, हम लोग घर से पढ़ा रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बहुत सारे ऑफिसों में जो है इम्प्लॉइज नहीं जा रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल करके हॉस्पिटल जा रहे हैं और पेशेंट की देख रेख कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और उनका केयर कर रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। चिल्ड्रेन, यू नो we are at home but they are putting their life at risk. Whenever we are in need of doctor, nurse, they are available. जब भी हमें डॉक्टर्स की जरूरत होती है, नर्स की जरूरत होती है, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। चाहे वो हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे सैनिक जख्मी हो जाते हैं, उनकी सेवा के लिए हमारे देश की सरहद पर क्या करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, उनको सेवा देते हैं, उनको ठीक करते हैं। या हमें कभी भी कोई परेशानी होती है, whenever we are in any emergency, तो हम कहाँ जाते हैं? वी रश टू द हॉस्पिटल। हम सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और वी कंसल्ट द डॉक्टर एंड वी कंसल्ट द डॉक्टर। चिल्ड्रेन, व्हेन वी गेट वेल वी रिगार्ड देम एज सेकेंड गॉड। जब हम डॉक्टर को क्या, जब डॉक्टर देखता है, जब हमारी इमरजेंसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो हम डॉक्टर को क्या करते हैं? भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ही धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप दूसरे भगवान हो हमारे लिए। ठीक है चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर द डे चिल्ड्रेन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द योर क्लास वर्क। Children, you have to draw a picture of traffic police. Here you have to draw a picture of traffic police in your classwork. And in your homework, you have to learn the importance of school and bank. I am showing you children the picture of traffic police. Here you see the picture of traffic police and you have to draw this picture. This is the picture of traffic police. This is the picture of traffic police. You draw this picture where I am putting my finger. I am putting this pencil. This is the picture of the traffic police. You draw it, and in your homework you have to learn the importance of school and bank. This is the importance of school and this is the importance of bank. You learn about this importance of school and bank. That's all for the day children. Thank you and have a nice day.